आज की रात। What do you believe about God? तो परमेश्वर के बारे में आप क्या विश्वास करते हैं? You'll say, yeah, I believe God is God. हम कहेंगे परमेश्वर तो परमेश्वर है, मैं ये विश्वास करता हूँ। Even devil believes God is God. लेकिन शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। That's not the kind of faith that pleases God. You know, Bible says, do you believe that God exists and God is one? You believe well, for even demons believe that and tremble. Do you know even demons believe? The Bible says that. वचन इस प्रकार से कहता है कि या तुम विश्वास करते हो कि परमेश्वर एक है, और शैतान भी ऐसा विश्वास करते हैं और वो कांपते हैं। तो आप जानते हैं कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। Oh yes, Pastor, I believe God is all powerful. Yeah, even Satan believes God is all powerful. हाँ पास्टर जी, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर महासामर्थी है, लेकिन शैतान भी ये विश्वास करता है कि परमेश्वर महासामर्थी है। What is at your core? If God looks at your heart, if He goes, His eyes penetrate to the depth of your heart. I'm not talking about what you do. I'm talking about the content of your heart. What is it that you believe about Him? हमारे दिल के एकदम अंदरूनी गहराई में अगर परमेश्वर आज झांक के देखे, तो उसमें अगर हम बता सकें क्या विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस पर ध्यान करता है। You know, when Jesus was walking on the face of the earth, यीशु जब पृथ्वी पर चल रहा था, and a leper comes to him, his body parts are falling apart, his skin is peeling off. एक कोढ़ी उनके पास आता है, उसकी चमड़ी जो है वो गिरी जा रही है, पिघल रही है कोढ़ के कारण। He says, Son of God, have mercy on me. वो कहता है, परमेश्वर के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, दया कर। Jesus didn't say, okay, go and fast for 40 days. यीशु ने ये नहीं कहा कि जाओ 40 दिन उपवास करो। He didn't say, well, you need to give more. उसने कोढ़ी से ये नहीं कहा कि अरे तुम्हें बहुत ज्यादा देने की आवश्यकता है परमेश्वर के राज्य में। You know what he did? ऐसा नहीं। What was the question that Jesus asked them? He said, do you? यीशु ने उस कोढ़ी से क्या सवाल पूछा? क्या तुम विश्वास करते हो? Do you believe that I can do this for you? Because at this question lies your answer. यीशु ने ये सवाल पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि इस सवाल पे आपका उत्तर टिका हुआ है। Many times, you know, oh, Pastor, I'm doing everything. Pastor, I'm coming to church. We are all the time analyzing our doing, but God is checking our believing. हम कई बार आके कहते हैं, पास्टर मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम कई बार यही सोचते रहते हैं, इसी बात पर तर्क वितर्क करते रहते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास की प्रणाली क्या है। Who do you believe God to be? हम क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कौन है सच में? Some people come to church because they just want to get healed. So they see Jesus as a doctor, and He is. कई लोग कलीसिया सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं और वो यीशु को एक डॉक्टर के समान देखते हैं, और यीशु सच में चंगा करता है। The Bible says that He is our great physician. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वो हमारा महान चिकित्सक है। He is. वो है। You'll come to church believing that, you'll get healed. अगर आप कलीसिया इस विश्वास के साथ आते हैं कि मैं चंगा होऊंगा, तो आप चंगाई पाएंगे। But that's all. You'll get healed. लेकिन हमारा विश्वास वहीं पर, Because you only believe for a healing. क्योंकि हमने सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास किया, तो वहीं पर हमारी विश्वास की प्रणाली रुक जाती है। Some people come to Jesus as an immigration officer. I need a visa to go to Canada or Australia or wherever. And they sometimes they get a visa, you know. But that's all that God is for them. Somebody who gives them a visa, or somebody who gives them a healing, or somebody who gives them a job. Who do you believe that Jesus is for you? Not who He is, but who do you believe? Because what you believe about Jesus, He is that for you. तो कई लोग यीशु के पास एक इमिग्रेशन ऑफिसर के समान आते हैं कि वो उससे वीज़ा पालें ताकि वो यूएस या कनाडा जा सकें। कई लोग उसके पास नौकरी के लिए आते हैं, अपनी चंगाई के लिए आते हैं। तो हम किस बात में सच में विश्वास करते हैं? वो सच में है कौन? क्या इस बात पर विश्वास करते हैं, या हमारे जीवन में कुछ हो जाए इसलिए विश्वास करते हैं? Your entire life
many of you would not realize it, is revolving around your belief system. अगर हमने अभी तक ये बात समझी नहीं है, लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन हमारी विश्वास की प्रणाली के आसपास ही घूम रहा है। We are ready to do. हम जल्दी से करने को तैयार हैं, But God is saying, no, no. लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं तुम्हारे करने में मैं कुछ सही कर सकूं, सही विश्वास करने से पहले वो धर्म है, वो धर्म की आत्मा से उत्पन्न होता है। Amen? आमीन। That's why it's very important to have a healthy belief system. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्वस्थ विश्वास की प्रणाली हो हमारे अंदर। There are Christians who believe that God will put them in poverty to teach them. So what happens? Jesus told people, let it be done unto you as per, not as per. He didn't say, let it be done unto you according to what I want, but he said, let it be done unto you as per your faith. So whatever you're witnessing right now is happening to you according to your faith. कई लोग इस प्रकार से मानते हैं कि यीशु हमें गरीबी में इसलिए रखता है ताकि वो हमारे जीवन में कुछ सबक सिखा सके, लेकिन यीशु ने कहा तुम्हें अपने खुद के विश्वास के अनुकूल मिलेगा। Our entire behavior is motivated by a belief system. हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रेरित होता है हमारी विश्वास की प्रणाली के द्वारा। Amen. And that's what I'm telling you. If you can pay attention there and align your believing according to the word of God, your life will be filled with fruits. अगर हम अपने जीवन में सच में फल देखना चाहते हैं, अच्छे फल, तो हम अपने विश्वास की प्रणाली वचन के ऊपर आधारित करते हैं।